Welcome to our online CG school classes, and today in our fourth chapter planning we are going to discuss the importance of planning. So without wasting time, let's start. The first importance of planning is planning provides direction. With the help of planning, efforts of all the employees and managers can be moved to a right direction. If there will not be proper planning, then efforts of all the employees and managers may go in a wrong direction. That is against the objectives of organization, against the goals of organization, and it will be very difficult to achieve the objectives or goals of organization if planning is not there. So planning move the efforts of employees and workers and managers to a right direction, which enables all to achieve the objectives and goals very easily. So let's discuss once again. Planning provides direction to efforts of employees. In the absence of planning, efforts can move in wrong direction. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो सारे जो एफर्ट हैं, सारी मेहनत है, वो wrong direction में जाएगी. Wrong direction means against the objective. Objective से अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे ही नहीं, एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट अचीव इट्स डिजायर्ड गोल. बाय डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू एक्शंस. तो एडवांस में जो हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, किसने करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो पहले से ही डायरेक्शन मिल जाती है एडवांस में. जो भी एक्शंस एम्प्लॉइज के, वर्कर्स के कैसे काम होना है वो पता चल जाता है एडवांस में. तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजिली अचीव होते हैं, एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन मिलती है प्लानिंग की वजह से. तो ये इंपॉर्टेंस हो गया. सेकंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर एंड वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन. एनीथिंग कैन बी हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इन दैट सिचुएशन planning reduces the risk of uncertainty. Let's make it clear. Planning is done for future and future is always uncertain. With the help of planning, risk of uncertainty can be minimized. तो proper planning करके जो uncertainty का risk है उसको कम किया जा सकता है. प्लानिंग की हेल्प से assumptions वगैरह लगाते हैं, premises सेटअप करते हैं. Premises we can see making future assumptions, making pre-planned assumptions about future, that is known as planning premises. Making assumptions regarding future is known as a planning premises. And with the help of past experience, with assumptions, by proper study of business environment, proper plans are made. So uncertainty is reduced with the help of planning. सीधी सी बात है, प्लानिंग की वजह से जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है उसका जो रिस्क है वो कम होता है. फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लॉसेज हमें बहुत सारे करवा के जा सकती है, कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन. तो प्लानिंग उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें प्रिपेयर करती है. प्लानर्स ट्राई टू फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर. तो जो प्लानर्स हैं प्लानिंग करते टाइम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, स्टडी के बेस पे, एजम्पशंस के बेस पे, सर्वे के बेस पे, तो वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं. हमें अनसर्टेनिटी से बचाती है प्लानिंग. थर्ड पॉइंट, planning reduces overlapping and wasteful activities. With the help of planning, proper coordination is possible between various departments, and if there will be proper coordination, then chances of overlapping and wasteful activities are reduced. So let's make it clear also. Planning is done keeping in mind the requirements of all the departments. प्लानिंग करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा जाता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को ध्यान रखा जाता है. सो देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट. प्रॉपर प्लानिंग की वजह से डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है. ड्यू टू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देयर इज नो चांसेस फॉर ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी. कोई चांस नहीं है. प्रॉपर प्लानिंग होगी, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में होगा तो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज की तो ये फायदा हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया. ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती प्रॉपर प्लानिंग की वजह से. प्लानिंग रिड्यूस कर देती है उनको. एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस, मैनेजर्स ऑलवेज एंगेज्ड इन searching something new, searching some new method, new way of production, new way of doing some job. They becomes creative and innovative. ठीक है, in this way they
planning enables all managers to search something new, some new idea of production, some new innovative method of doing any type of job. So let's make it clear. Planning is an intellectual process. सोचने समझने की मानसिक प्रोसेस है प्लानिंग, which require high level of thinking. तो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग प्लानिंग के लिए चाहिए. सो इसीलिए टॉप वाले करते हैं प्लानिंग को, मिडिल या लोअर लेवल वालों को प्लानिंग का काम नहीं दिया जाता. इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग बेटर आइडियाज एंड मेथड्स टू परफॉर्म ए जॉब. सो इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग बेटर आइडियाज. तो प्लानिंग करते टाइम जो मैनेजर्स हैं, जो प्लानिंग करेगा वो नए नए जॉब करने के तरीके ढूंढते रहते हैं, मेथड्स ढूंढते रहते हैं. Planning enables managers to think differently and to discover new ideas and methods. तो प्लानिंग करते टाइम वो डिफरेंटली सोचने के लिए मजबूर होते हैं और नए नए आइडियाज मेथड्स वगैरह वो सर्च करते हैं, डेवलप कर पाते हैं. सो इट मेक्स मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टू सर्च सम डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग जॉब्स. तो सीधी बात है, प्लानिंग करने की वजह से जो मैनेजर्स हैं वो इनोवेटिव होती हैं, क्रिएटिव होते हैं. बार बार प्लानिंग करते करते उनके माइंड में नए नए आइडियाज, नए नए वेज ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स वगैरह वो डेवलप कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग helps managers to make proper decisions. You know that proper predictions, assumptions are made by managers before framing plans. So planning, with the help of planning, proper decision can be taken. Let's read out and understand this. Planning helps managers to take important decisions. In planning, various alternatives are discovered and the best alternative is selected. So by making predictions and assumptions out of the available alternatives, the best one is selected by managers. Managers make predictions and assumptions for future. So managers predictions, assumptions future के रिगार्डिंग लगाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प से, स्कैनिंग की हेल्प से, कोई सर्वे वगैरह करवा के लाइक, तो वो प्रॉपर जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करते हैं. दे ऑल्सो स्कैन द एनवायरमेंट रेगुलरली. These predictions, assumptions and timely scanning of environment help managers to take proper decision. तो यही है, प्रॉपर प्लानिंग करने की वजह से प्रॉपर डिसीजन लेना पॉसिबल है, क्योंकि स्कैनिंग वगैरह करते हैं एनवायरमेंट की, assumptions फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस वगैरह करके तब कोई प्रॉपर अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जाता है. तो प्रॉपर डिसीजन पॉसिबल है प्लानिंग की हेल्प से. तो ये फायदा हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, एडवांटेज हो गई. सिक्स्थ वन, planning establishes standard for controlling. Planning gives the standard for controlling. Controlling में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसको कंपेयर किया जाता है, डेविएशन निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है और फिर उसको रिमूव करने के लिए, डेविएशन को रिमूव करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं. लाइक एक स्टैंडर्ड आउटपुट का टारगेट है एक वीक का या एक दिन का, एक महीने का, कितने सपोज 100 यूनिट है, एक हफ्ते का लगा लेते हैं. एक हफ्ते का जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 100 यूनिट है, एक्चुअल आया 120, तो डेविएशन कितना हुआ 20 का. तो उस 20 के रीजन फाइंड आउट किए जाएंगे, क्यों हुआ, तो वो इसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. इसको स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, डेविएशन निकालना और जो डेविएशन है उसको रिमूव करना. अब ये जो स्टैंडर्ड है 100 का या कितने का भी, वो किसने दिया, वो प्लानिंग ने दिया. प्लानिंग हमें स्टैंडर्ड देती है कंट्रोलिंग करने के लिए, इसलिए कंट्रोलिंग का जो बेस है वो प्लानिंग है. क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो किसने दिया, प्लानिंग ने दिया. तो करते हैं इसको थोड़ा और डिस्कस. अंडर प्लानिंग स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड. प्लानिंग में स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि 100 हो गया, 150 होगा, 200 होगा, कितना होगा, एक दिन का या एक वीक का जो आउटपुट है वो प्लानिंग करते टाइम हम फिक्स करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट. So under planning, standards are fixed. With the help of these standards, actual output is compared and deviations are found. तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसके साथ एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर किया जाता है, डेविएशन या डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है. In this way, planning helps manager in controlling by fixing standard. तो जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है मैनेजर्स की. क्यों करती है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो प्लानिंग देती है, प्लानिंग में स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है. And the last point of importance is planning focuses on attention of objective of company. प्लानिंग का मेन पर्पस है, मेन जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है.
वो फर्दर जो मेथड्स वगैरह बनाए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं और रूल्स रेगुलेशन वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो मेन जो पर्पज है सभी का वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही है। प्लानिंग का जो मेन फोकस है, मेन पर्पज है, वी कैन से मेन ऑब्जेक्टिव है, कैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव करना है, उस पर फोकस रहता है। तो बढ़ते हैं थोड़ा और इसको। प्लानिंग फंक्शन बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग प्रोसेस, इवन वी कैन से प्लानिंग फंक्शन है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करने से ही शुरू होती है। मेन जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर रहता है। Various types of plans like policies, procedures, methods, strategies, rules, programs, etc. are made only to achieve objectives. Through planning, efforts are directed towards objective. तो मेन जो पर्पज है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। मेथड्स, प्रोसीजर वगैरह बना के एफर्ट्स को ऑब्जेक्टिव्स की डायरेक्शन में मूव किया जाता है, वो प्लानिंग ही करती है। सो थैंक यू।